Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class first year. This is your computer class and I am your instructor Anika Muzammil. Today we are about to end the chapter 3 which we are studying, which is about components of CPU, in which we have studied the instruction formats. We have studied main components of CPU like control unit and arithmetic logic unit, and we have studied about the buses which adds control bus, addressing bus. So today this topic will come to an end by following the topic instruction cycle, some architecture of CPU, and some commonly used processors and with their specifications. So let's begin with the lecture. First of all, we will have a little I'm not going into any detail because you have studied this topic previously. This was just coming with the continuity of our RISC and CISC architecture, so I added this topic again. It will just help you to make your concepts more clear. So what is an instruction cycle? We have all studied an instruction cycle is basically a set of operations a computer uses to execute instructions. कोई भी instructions है computer ने जो भी काम करना है वो किन steps को follow करते हुए वो काम करेगा, that is basically your instruction cycles. कि computer किस way में retrieve करेगा instruction को memory से, फिर उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा what instruction he has to perform on that instruction, और उसको वो instruction वो action किस way में carry out करना है. So that is the instruction cycle is all about. It consists of three basic steps: fetch operation, decode operation and execute operation. Three basic instruction cycle के हमारे पास steps हैं: fetch, decode and execute operation. In fetch there is a sequence of this cycle. First of all, the CPU fetches the instruction, then it decodes the instruction and then it executes it. Fetch में क्या करता है कि वो उसको memory से लेके आता है, either वो memory में है या किसी storage device में है. Let's suppose based on some scenario, अगर वो memory location किसी memory location के ऊपर है तो CPU उस instruction को required memory location से using some address search करेगा, then it will decode the instruction. Decode means कि उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, and it will make it understand, make himself understand that what kind of operation is to be performed on that instruction, and finally CPU will execute that instruction, and this cycle repeats for every instruction CPU execute. ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो 3 स्टेप्स पे बेस करता है, एंड दीज कम्स इन अ सीक्वेंस लाइक fetch is the first one, second one is decode and the third one is execute. So what is the fetch operation? Fetch operation में control unit जो है वो using address bus वो main memory से instruction को fetch करता है और उसका जो command है उसको read करता है through control bus, which tells either that command has been read or not, और फिर उस instruction को further processing के लिए instruction register में place कर देता है microprocessor के अंदर. Instruction registers आप लोगों ने types of registers में पढ़ा होगा जो कि यूज़ होता है उन instructions को place करने के लिए जो CPU fetch करता है for execution. In the decode operation, the fetch instruction is decoded into bits in the form of bits to understand what kind of operation it has to be performed. जैसे हम लोगों ने instruction formats की बात की थी, हमने 2 address instruction format पढ़ा था, which includes, जैसे 2 address instruction में हमने 2 examples की थी. हम addition वाली example ले लेते हैं. Let's suppose add A and B. अब add A and B को understand करने के लिए, कंप्यूटर को understand करने के लिए it must be decoded into binary language. तो डिकोडिंग में बेसिकली यही होता है, वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो ऐड को जब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो सीपीयू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऐड मींस एंड ही विल ऐड द रिस्पेक्टिव 2 नंबर्स या कोई भी मेमोरी एड्रेस पे मौजूद डाटा वो गिवन है या डायरेक्ट डाटा उसके अंदर गिवन है, तो वो उनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा. सिमिलरली अगर हमारी जो एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शन है इट इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जैसे मल्टीप्लाई ए एंड बी, तो उसको भी वो डिकोड करके अंडरस्टैंड करेगा व्हाट MUL मल मीन्स, दैट मल्टीप्लिकेशन को वो अपनी लैंग्वेज में कैसे अंडरस्टैंड करता है. तो अंडरस्टैंडिंग के बाद वो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं सेट ऑफ डेटा के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा. सो दिस इज व्हाट इट इज़ बीइंग डन इन दी decode operation. Execution.
जब आपके पास डिकोडेड कंप्लीट हो जाती है तो इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। इंस्ट्रक्शन किस बेस पे एग्जीक्यूट होती है? डिकोडिंग की बेस पे। जब सीपीयू जो है वो अंडरस्टैंड करता है व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन इज इंटेंडेड टू डू। जैसे उसके अंदर मैंने बात की एडिशन की बात थी, तो वो उसको फॉलो करते हुए वो दो नंबर्स को सिंपली जो है वो ऐड कर देगा। अगर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की बात हो रही थी, कोई इंस्ट्रक्शन गिवन थी, तो वो सिंपली उस डेटा को मूव कर देगा, या उसके अंदर कोई कंपैरिजन गिवन था या लॉजिकली वैल्यूज को कंपेयर करके कोई रिजल्ट जो है वो बनाना था, तो वो भी हमारे पास एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा। जब एग्जीक्यूशन हमारे पास हो जाती है तो कंट्रोल यूनिट जनरेट्स अ सिग्नल दैट इज नीडेड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट टेल्स कि अगर लेट्स सपोज वो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला काम है, तो कंट्रोल यूनिट विल डेफिनेटली मूव दैट इंस्ट्रक्शन टू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ताकि वो उसके ऊपर वो रिस्पेक्टिव एडिशन जो है वो perform करे. So this is how an instruction cycle is completed with 3 basic steps. I didn't go with much detail, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज ही करवाया है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। Next one is CISC and RISC architecture. So these are the basic architectures a CPU is based on. CPU के अंदर जो architecture है कि जो जिसकी बेस पे CPU काम करता है, these are basically two CISC and RISC. CISC stands for complex instruction set computer and the RISC one is reduced instruction set computer. ठीक है। अब हमारे पास कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर क्या है कि जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है सीपीयू का, जो पहले हमारे पास जो मतलब कि जनरली यूज हो रहा है, हमें पता है कि सीपीयू इसी के ऊपर बेस होगा, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की टाइप्स को ये सपोर्ट करता है, लाइक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक मेनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड, कैन बी हेल्ड इन दिस आर्किटेक्चर। अब क्या होता है कि हमारे पास उन इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो स्मॉल लेंथ की होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस का लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर तमाम एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं सिस्क के अंदर। सिस्क में एक इंस्ट्रक्शन को, एक जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे मोड हैं। उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए हर उस मोड के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा जो सिस्क के अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज अगर हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एडिशन ए एंड बी, तो सिस्क आर्किटेक्चर क्या करेगा, उस एडिशन वाले के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करके उसको एक और मोड में कन्वर्ट करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर वर्किंग करके एक और मोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। वो डायरेक्टली चीज़ों को एकदम से सॉल्व नहीं करता है। सो दिस इज हाउ दिस इज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो इंटेल और पेंटियम सीरीज है। इंटेल और पेंटियम सीरीज के हमारे पास सीपीयू होते हैं, ठीक है। जैसे हम पेंटियम 4 की बात करते हैं, ठीक है, कोर i3 कोर i4 ये इंटेल के अंदर आते हैं सीपीयूज। तो उनके अंदर हमारे पास ये सिस्क आर्किटेक्चर यूज होता है जो तमाम एड्रेसिंग मोड्स यूज करता है। एड्रेसिंग मोड्स में आपके पास आगे टॉपिक आता है जिसके अंदर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। डायरेक्ट मोड में क्या होता है, डेटा डायरेक्टली जो है वो एक्सेस हो जाता है। इनडायरेक्ट में जो है वो इनडायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर रहा है, डायरेक्ट में तो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर से जाके जो है वो डेटा को एक्सेस कर रहा है। सो दीज आर सम बेसिक एड्रेसिंग मोड जिसकी बेस पे डेटा को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिस्क के अंदर बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं जो कि पूरी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए उन तमाम एड्रेसिंग मोड्स की जो भी मॉड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इट इज अ बिट complex architecture. So moving on to the RISC architecture, it is a new architecture of CPU that is being used in mobile phone and tablets. That's how our devices are more fast and they are more cheaper इन मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज नहीं होता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड टेक्स टाइम, इट डू नॉट गो डायरेक्टली टू द लोकेशन, ठीक है। ये हो सकता है कि हमारे पास इनडायरेक्ट मोड के अंदर हमारे पास जो लेट्स सपोज 500 लोकेशन है जहाँ से हमें डेटा चाहिए, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में वो 500 लोकेशन के ऊपर कभी भी डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो उससे प्रीवियस तमाम लोकेशंस को चेक करता जाएगा कि हालांकि उसको डायरेक्टली उस लोकेशन के ऊपर मूव करना चाहिए। सो दिस इज हाउ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेक्स थिंग्स कॉम्प्लेक्स। जबकि डायरेक्ट एक्सेसिंग मोड क्या करेगा कि वो डायरेक्टली उस लोकेशन के ऊपर जंप करके वहां से वो डाटा जो है वो पिक कर लेगा।
सो रिस्क आर्किटेक्चर डोंट यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जबकि सिस्क आर्किटेक्चर डेफिनेटली यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो तमाम एड्रेसिंग मोड जो है वो यूज कर लेता है। एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं? वो ये बताते हैं कि हमारा डेटा किस वे में एक्सेस होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन रिस्क आर्किटेक्चर में इस वजह से, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ नहीं करता, तो इंस्ट्रक्शन सिंपली जो है और बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और सीपीयू हमारे पास इस आर्किटेक्चर के साथ फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग में और उनकी बिल्डिंग में इतना टाइम टेकिंग नहीं होती। वो मैन्युफैक्चर भी कम कॉस्ट पे होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसके ऊपर कम होते हैं। IBM पावर पीसी, सनस्पार्क और मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स वगैरह के अंदर हमारे पास जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर यूज होता है। दीज डिवाइसेस आर मच फास्टर एंड मच चीपर। Why are they faster? Because they do not use indirect accessing mode, whereas CISC use all kind of addressing mode, which makes the instructions more complex and it takes a lot of time to execute. So obviously अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो which instruction could be best? The RISC architecture, which is reduced instruction set computer. So here is a little bit comparison between these two instruction. अब हमारे पास sys instruction के अंदर क्या है? Utilizes more cycles than RISC. अब cycle क्या चीज होती है CPU के अंदर? जो हमारे पास टेंडेंसी होती है सिग्नल के चेंज होने की, कि एक सिग्नल जो सीपीयू का जो डिजिटल सिग्नल्स हैं 0 से 1 होने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज बेसिकली योर एग्जीक्यूशन, दैट इज बेसिकली योर, नो दैट इज एक्चुअली क्लॉक। तो क्लॉक के अंदर ही वो साइकिल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सिस्क जो है वो आपके पास मोर साइकिल्स को यूटिलाइज कर लेता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसी तरीके से सिस्क के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन किस वजह से, क्योंकि वो तमाम एड्रेसिंग मोड यूज करता है। और अगर कोई एड्रेसिंग मोड ऐसा है जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है, सिस्क उसको भी सपोर्ट करता है, विच मेक्स इंस्ट्रक्शन वे मोर कॉम्प्लेक्स। सिस्क के अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं देन रिस्क। रिस्क आपके पास मोर इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फास्टली जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। सिस्क इम्प्लीमेंटेशन टेंड टू बी स्लोअर देन रिस्क इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली इट वुड गेट स्लो, क्योंकि उसके अंदर तमाम एड्रेसिंग मोड यूज हो रहे हैं। इट विल टेक टाइम for all instruction to get executed fastly. Computer typically use CISC while tablet, smartphone and other devices use RISC. Computers के अंदर mostly जो है वो हमारे पास CISC architecture use हो रहा है, जबकि हमारे पास जो smart devices हैं that uses the RISC architecture. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। हमने पीछे बात की इंटेल प्रोसेसर की, ठीक है। इंटेल एंड AMD प्रोसेसर, ये बेसिकली आपके पास मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि प्रोसेसर, यानी आपके पास जो CPU के अंदर जो चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, जो चिप सारा काम करती है, जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो लेट मी शो यू कि वो चिप क्या होती है। हियर आई वुड लाइक टू copy this image from internet, ताकि उसको मैं यहाँ पे ही पेस्ट करती हूँ so that you can see what a processor is। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास ये सिस्को और रिस्क आर्किटेक्चर वाले जो हैं वो सॉरी इंटेल एंड AMD प्रोसेसर जो है वो उसको डेवलप करते हैं। Here is a picture of a microprocessor that is basically your यू कैन से माइक्रो प्रोसेसर है जो कि CPU के अंदर होता है। आपके पास आगे को टॉपिक आएगा जिसके अंदर यही इंटेल और AMD प्रोसेसर के अंदर ही कंपैरिजन में आता है कि इंटेल की 478 पिन्स होती हैं जबकि AMD की कितनी पिन्स होती हैं। तो ये पिन्स इसके ऊपर ये जो लगी होती हैं, दीज आर बेसिकली पिन्स ऑफ गोल्ड। तो इनसे गोल्ड भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये करते ना रहना, पता लगे कि आप लोग CPU घर का तोड़ के और उसके अंदर से ये प्रोसेसर चिप निकाल के और गोल्ड इकट्ठा करके बैठे हों और अपने मैडम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्किंग। तो आपके पास जो है ये जो CPU चिप्स होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, ये आपके पास इंटेल और AMD जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इन्हीं के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपके पास रिस्क आर्किटेक्चर में यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो चीपर होता है हमारे पास और वो जल्दी मैन्युफैक्चर हो जाता है। So let's get back to the
लेक्चर हम कहाँ थे, हम इंटेल एंड AMD प्रोसेसर के ऊपर थे और हम बात कर रहे थे प्रोसेसर्स की, और हमने उसकी पिक्चर भी देखी कि प्रोसेसर जो है वो बेसिकली क्या होता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स, नोटबुक्स के लिए आपके पास ये प्रोसेसर्स बनाते हैं, और इनकी ऑब्वियसली स्पीड जो है वो वेरी करती है इनके फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक ही तरह के प्रोसेसर कभी भी नहीं बनाएंगे, कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्ट्स अगर कोई बनाती है तो वो उनके अंदर वर्सेटैलिटी होती है। जो चीपर प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कम फंक्शनैलिटी होती है, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास प्रोसेसर्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो किस किस्म के सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। एग्जांपल क्या है, कोर, पेंटियम, सेलेरॉन फैमिलीज और इंटेल प्रोसेसर, जैसे कोर i3, कोर i4, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये सारे हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं। जो बच्चे कंप्यूटर के साथ जिनके एफिलिएशन है उनको पता होगा पेंटियम 4 क्या है, कोर i3, कोर i7 भी इवन आ गया है। तो जो जो वेराइटी आती जा रही है, कोर i7 इज मच फास्टर देन कोर i3, ठीक है। तो बनाए एक ही कंपनी ने, लेकिन कोर i7 के अंदर मजीद एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसकी वजह से दैट इज मच फास्टर प्रोसेसर देन कोर i3। फाइनल मैथलॉन्स जो है वो AMD प्रोसेसर है, कोर, पेंटियम, सेलेरॉन फैमिलीज आपके पास इंटेल प्रोसेसर है। सो लेट्स सी देयर कंपैरिजन कि आपके पास जो है क्या कंपैरिजन। इंटेल प्रोसेसर 20 स्टेप्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, यानी वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्यू जनरेट कर देता है। उस क्यू में वो उस क्यू के 20 स्टेप्स हैं जिसके अंदर उन इंस्ट्रक्शन को वो बारी बारी पाइपलाइन में रखता जाता है, ठीक है। इसी तरीके से AMD प्रोसेसर के 10 स्टेप एग्जीक्यूशन प्रोसेस हैं। पाइपलाइन में उनके पास जो है एक इंस्ट्रक्शन 10 डिफरेंट स्टेप्स में एग्जीक्यूट ब्रेक होके पड़ी हो सकती है, या हो सकता है कि 10 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो पाइपलाइन में वेट करी हूँ कि अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो पिछली इंस्ट्रक्शन लोड हो के वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। क्लॉक स्पीड इसकी हाई है। क्लॉक स्पीड जो मैंने आप लोगों को बताई है अभी पिछली स्लाइड में कि क्लॉक स्पीड हमारे पास ये वो स्पीड है कि जिसके अंदर सिग्नल की शेप चेंज होती है, कि सिग्नल आपके पास जैसे डिजिटल सिग्नल्स का अगर आपको आइडिया हो तो वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ब्लॉक्स की फॉर्म में जैसे 1 और 0, लो एंड हाई के बीच में जो है वो स्टेट्स को स्विच करता है। तो क्लॉक स्पीड ज्यादा तब होगी जब सिग्नल तेजी से 1 से 0 पे मूव करेगा, 0 से 1 पे, मतलब कि वो सिग्नल की शेप जितनी तेजी से चेंज होगी उतनी तेज क्लॉक स्पीड होगी। ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है मतलब कि ज्यादा डेटा प्रोसेस हो रहा है। क्लॉक स्पीड ज्यादा है तो सिग्नल ज्यादा जल्दी शेप स्विच कर रहा है, तो हमारे पास जो है वो क्लॉक स्पीड उस हिसाब से ज्यादा होगी। AMD प्रोसेसर की इतनी क्लॉक स्पीड जो है वो नहीं होती। सॉकेट्स की अभी मैंने आपको पीछे बताई, जो पिक्चर अभी मैंने माइक्रो प्रोसेसर की शेयर की थी जिसके ऊपर वो गोल्डन गोल्डन पिन्स अगर आपको छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में नजर आ रही थी, तो इसकी 478 पिन्स होती है, जबकि AMD प्रोसेसर की 462 बिट्स होती हैं। क्लॉक स्पीड को मेजर करने के लिए आपके पास जो है इंटेल प्रोसेसर मेगाहर्ट्ज यूज करता है, जबकि AMD प्रोसेसर मेगाहर्ट्ज को यूज नहीं करता। ये इस वजह से मेगाहर्ट्ज यूज करता है क्योंकि मेगाहर्ट्ज में क्लॉक स्पीड उसकी फास्टेस्ट है, तो वो ज्यादा रेट जो है वो मेजर होगा, जबकि AMD प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड फास्टेस्ट नहीं है इंटेल के रिलेटिव, तो उसके लिए उसको मेगाहर्ट्ज जो है वो यूनिट मेजर करने के लिए यूज ही नहीं करना पड़ता। सो दीज आर बेसिकली टू मैन्युफैक्चरर्स जो कि क्या बनाते हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स, एंड दे आर डिफरेंट इन देयर स्पेसिफिकेशंस। Here is a little comparison of Intel processor and AMD Athlon processor. तो इनकी clock speed, इनकी bus width ये बताती है कि how many addresses they can support। कैश जो उनकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है जिसके अंदर जो CPU और मेमोरी के बीच का एक हिस्सा होती है, जो चीज़ें आपके पास फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं वो मेमोरी से एज अ कॉपी कैश मेमोरी के अंदर लोड कर दी जाती हैं, ताकि CPU को दोबारा मेमोरी में जाके उस चीज़ को एक्सेस ना पड़े, वो कैश मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस कर ले। और फिर आर्किटेक्चर जो है वो आपके पास, तो इंटेल के अंदर क्लॉक स्पीड इसकी ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि फास्टेस्ट है, वो गीगाहर्ट्ज के अंदर जो है वो मेजर की जाती है, जबकि AMD की हमारे पास जो है वो क्लॉक स्पीड स्लोअर है। बस विड्थ इसकी भी 32 टू 64 बिट्स है, मोस्टली 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज होता है। 64 बिट होगा तो उससे मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या मोर एड्रेसेस जो है वो एक CPU सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 की पावर 32 लें तो जो आंसर आएगा, ये 2 की पावर 64 लें तो जो आंसर आएगा दैट
would be the number of addresses a CPU can support. कैश मेमोरी आपके पास इंटेल की ज़्यादा होती है, दैट इज़ अप टू 1 MB, जबकि AMD की 512 KB है, विच बिकॉज इट इज़ इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी हमारे पास जो है वो स्पीड कम होगी, वो ज़्यादा टाइम लेगी मेमोरी से लोड होने में, या उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट जो है वो एट द सेम टाइम पे रखा नहीं जा सकता। इंटेल प्रोसेसर आपके पास सिस्क आर्किटेक्चर भी यूज़ करता है और रिस्क आर्किटेक्चर भी यूज़ करता है, जबकि AMD प्रोसेसर आपके पास रिस्क आर्किटेक्चर यूज़ करता है, विच इज़ अ गुड थिंग, दैट मीन्स उसके अंदर इंस्ट्रक्शन उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। ठीक है, हियर वी आर डन विद द चैप्टर कंटेंट। एक चीज आपके पास एक्सरसाइज में एडिशनल कॉन्सेप्ट के तौर पर ऐड है, विच इज एड्रेसिंग मोड, जिसका एक स्मॉल सा आपके पास क्वेश्चन है विद द आंसर ऑफ 1 line आई गेस। सो आई हैव एडेड अनदर टॉपिक विद अ लिटिल बिट डिटेल ऑफ एड्रेसिंग मोड, के वो क्या है एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड हमारे पास ये डिफाइन करता है कि हमारा डेटा किस वे में एक्सेस होगा, आइदर वो डायरेक्टली एक्सेस होगा या वो इनडायरेक्टली एक्सेस होगा। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा कि अगर हमने लोकेशन नंबर 400 को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली कंट्रोल लोकेशन नंबर 400 पे जंप करेगा और वहां से मौजूद उस मेमोरी एड्रेस पे मौजूद डाटा को एक्सेस कर लेगा। दिस इज डायरेक्ट एक्सेस मोड। और इनडायरेक्ट एक्सेस मोड में क्या होता है कि उससे पहले वाली तमाम लोकेशंस को वन बाय वन वो एक्सेस करता जाता है, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके अलावा आपके पास एक और एक्सेसिंग मोड होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जो कि ना ही डायरेक्ट एक्सेसिंग मोड को यूज करता है ना ही इनडायरेक्ट एक्सेसिंग मोड को यूज करता है। वो सिंपल हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर जो ऑप कोड गिवन होता है उसको फॉलो करते हुए वो ऑपरेशन क्विकली परफॉर्म कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेस मोड कैसे पता लगेंगे, कहाँ से आएंगे? तो जो हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा है उसके अंदर पहला पार्ट जो है वो ऑप कोड को रिप्रेजेंट करता है, अगला पार्ट ऑपरेंड कोड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जो ऑपरेंड कोड की फर्स्ट बिट होती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट डिफाइंस द एड्रेसिंग मोड। अगर आपके पास वो बिट जो है वो 1 है तो दैट वुड बी आई गेस इनडायरेक्ट मोड होगा, और आपके पास 0 है तो वो डायरेक्ट मोड। ऐसे ही कुछ होता है 1 और 0 के बीच में। ठीक है, 1 या 0 बिट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मोड को बताती है कि हमारे पास डाटा किस मोड के अंदर एक्सेस होगा। एड्रेसिंग मोड अगर हम यूज करें तो वो सीपीयू का टाइम सेव कर रहा है। किस तरीके से? क्योंकि ऑपरेंड कोड की फर्स्ट बिट ही हमें बता रही है कि हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, तो सीपीयू को ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि विच मोड इज टू बी यूज। तो जो भी बिट है अगर वो 0 है और 0 लेट सपोज अगर डायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 इनडायरेक्ट मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहली बिट अगर 1 है तो सीपीयू विल गेट कि ये इनडायरेक्ट मोड है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेगा उस पूरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर और उसको उस वे में एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इसके ऑपोजिट है तो वो डायरेक्ट मोड को यूज करते हुए उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज द वे in addressing modes tell the CPU the way of an instruction to be executed. So this is its advantage। ये आपके पास इंस्ट्रक्शन को जो है वो फास्टली एग्जीक्यूट करता है इस तरीके से कि CPU don't need to think over that, CPU don't need to sit idle, or CPU don't need to take an extra time to decide which mode is to be followed। वो बिट्स आपके पास जो है वो डिफाइन कर देती हैं ऑपरेंड की, और उसी से हमें पता चल जाता है कि वो ऑपरेंड किस वे में एक्सेस होगा। सो दैट्स ऑल इज इन एड्रेसिंग मोड इज टू यू। आप लोगों के पास एक्सरसाइज के कंटेंट के लिए इस स्लाइड से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आई हैव एडेड दैट इन योर होम टास्क स्लाइड। So that's all from chapter 3 here. Chapter 3 is completed mostly. Now coming back to the home task, mostly जो आपके पास exercise questions हैं that are being done, जो आप लोगों को assignments दी जाती है आपने उसके अंदर कर लिए हैं। जो remaining आपके पास short questions answer हैं, you will have to do them by this weekend. You have whole 3 days I guess. आज थर्सडे है और आपके पास अगले 3 दिन मौजूद हैं, तो आपने एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करने हैं। यू हैव टू सबमिट विद योर नेम इन द सब्जेक्ट ग्रुप, एंड फॉर दैट क्वेश्चन जो आपके पास एड्रेसिंग मोड वाला क्वेश्चन, उसके लिए आप स्लाइड के अंदर से हेल्प ले सकते हैं। यू कैन ऐड दैट कंटेंट। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। यू विल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट टू गेट योरसेल्फ मार्क्ड present in the class. So inshallah we will learn some other chapter in the next class maybe, or we will decide over that what to be added in the what content is to be added in the next class.
rewatch this lecture if you have any ambiguity, or you can ask me directly. So that's all for today. Have a good day ahead. Stay blessed and Allah Hafiz.